ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں شریعت نہ ہونے کی وجہ سے فلمی تہذیب کے راج نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کافروں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ وہ ہماری بیٹی کے بدن پہ جب نقاب ہوتا ہے تو فلم کی ناچنے والی ہیروئن کو کھٹکتا ہے کہ ان کے بس میں ہوتی ان کے نقاب کو نوچ لے، ان کے پردے کو نوچ لا لے۔ شریعت پہ عمل کرنا اگر کوئی عورت چاہتی ہے آج اس کا مذاق فلم کی طوائف اڑا رہی ہے، فلم کا جوکر اڑا رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یہ حوصلے مشرکین کے کیسے بلند ہو گئے؟ حوصلے اس لیے بلند ہو گئے کہ ہم نے 24 گھنٹے ان کے پروگرام کو دیکھنا اپنے گھر کی زینت بنا لیا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی چلتی ہے، 24 گھنٹے فلمیں چل رہی ہیں، نتیجے میں ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا کومل دماغ کیا سیکھے گا؟ وہ کیسے جانے گا کہ ابو عبداللہ سلیمان جزولی کس کا نام ہے؟ ہمارے بچے کیسے جانیں گے کہ عثمان ہارونی کس کا نام ہے؟ کیونکہ 24 گھنٹے جو چکی چلتی ہے وہ شاہ رخ اور سلمان کی چکی۔ ابو سلیمان جزولی کی تاریخ میرے بچے کیا جانے گئے؟ وہ تو ہماری اس روشن تاریخ کا حصہ بن کے رہ گیا ہے وہ چیپٹر۔ اب سلیمان جزولی جیسا عالم دین متقی وقت و دوران سفر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ ایک بار نماز کا آخری وقت تھا اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، سامنے کنواں ہے ڈول نہیں، بے چین ہو گئے۔ بیٹا کے مر جانے کے بعد ہمارے بزرگ اتنا بے چین نہیں ہوتے تھے جتنا کہ نماز کے چھوٹ جانے کے صدمے سے بے چین ہوتے تھے۔ یہ ان کا کریکٹر اور کردار تھا۔ بے چین ہونے لگے، کیسے ہم وضو کرے پانی نکالے؟ سامنے والے کوٹھے سے ایک لڑکی دیکھ رہی تھی، وہ پردے سے ملبوس پوچھتی ہے بابا کیوں پریشان ہے؟ کہا کنواں ہے ڈول نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ وقت جا رہا ہے، نماز قضا ہو گئی تو پھر میرے لیے موت ہو جائے گی۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ کا نام تو سنے، چہرہ مہرہ نورانی اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کوئی صالح ہے، آپ کا نام تو سن لوں میں۔ کہا مجھے سلیمان جزولی لوگ کہتے ہیں، ابو عبداللہ سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ سلیمان جزولی بہت بڑے بزرگ کا نام ہے، بہت بڑے صالح کا نام ہے۔ وہ کچی سی عمر تھی، وہ کیسے جانے گی سلیمان جزولی بڑے بزرگ کا نام ہے؟ اس کا مطلب ہے گھر میں علاقے کے نیک عالموں کا چرچا ہوتا ہوگا۔ اس کا وقت ہے صبح و شام اس علاقے کے کون متقی پرہیزگار عالم ہیں، کون دین کا کام کر رہے ہیں، کون سب سے بڑے عالم ہیں، کون سب سے زیادہ متقی ہے، دن رات چرچا ہوتا ہوگا۔ جب ماں چرچا کرتی ہے، جب باپ چرچا کرتا ہے تو چھوٹی سی بچی کے دماغ میں علاقے کے سارے بڑے عالموں کا نام اس کے دماغ میں آتا ہے۔ یہاں دل اور دماغ میں عالموں کی محبت ان کی ماں بٹھا رہی ہے، یہ بہت بڑے عالم کا نام کہتی ہے۔ میں تو سن رکھی ہوں جزولی صاحب بہت بڑے عالم کا نام ہے، پھر بھی آپ پریشان ہیں پانی کے لیے۔ وہ وہاں سے اتر کے کنویں میں تھوک ڈال دیتی ہے، کنویں کا نیچے کا پانی باہر آ کے موجیں مارنے لگتا ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی فوری وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر پہ جا کے دستک دیا، وہ لڑکی پردے سے کہتی کیوں؟ کہا کہ میں صرف ایک راز پوچھنے آیا ہوں، یہ بتا دے بیٹی کہ تمہارا اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا کہ تم تھوک رہی ہو تو کنویں کا پانی باہر آ رہا ہے؟ یہ مقام یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ رسول پاک کا واسطہ ہے، یہ بتا دے کہ یہ مقام اتنا تجھے کیسے ملا؟ سلیمان جزولی بہت بڑے جید عالم متقی پرہیزگار اپنے زمانے کے بزرگ، مگر چونکہ یہاں اہمیت بتانی تھی ایک دوسرے عمل صالحہ کی، اس لیے اس لڑکی کے ہاتھوں اس کرامت کا صدور ہوا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اگر آپ رسول پاک کا واسطہ نہ دیتے میں کبھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی۔ وہ کہنے لگی بابا جس رسول معظم کا آپ نے واسطہ دیا ہے اسی رسول معظم پر کثرت سے درود بھیجنے کی بدولت اللہ نے مقام عطا فرما دیا۔ اللہ صبر جب بات کو لاجواب، جہاں فرائض و واجبات کے علاوہ درود پاک کثرت سے پڑھنا فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے، اور جب نبی کا نام آئے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار درود کوئی پڑھ لے تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پہ عمل ہو جائے گا، اور جب سرکار کا نام آئے اس وقت درود پڑھنا یہ واجب ہے، مگر کثرت سے درود پڑھنا یہ نفل ہے۔ یہ نفل عبادت اس قدر رنگ لاتی ہے کہ کنویں میں تھوکے تو کنویں کا پانی باہر موجزن ہو جائے۔ یہ نفل کی کثرت کون کرے گا؟ نفل کی کثرت وہ کرتا ہے جن کے سینے میں فرائض کی اہمیت ہوتی ہے۔ فرائض و واجبات کے علاوہ جب نفل کی کثرت ہو تب بزرگی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی 1 کروڑ کی مسجد بنا دے، یہ نفل نیکی ہے، نیکی لٹکی رہے گی جب تک کہ وہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ جو اس پر فرض ہے وہ ادا نہ کر دے۔ کوئی 1 کروڑ روپے کا کمبل پاڑ دے، یہ نفل نیکی ہے، یہ نیکی لٹکی رہے گی اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ وہ ادا نہ کر دے۔ کوئی آدمی 1 کروڑ آدمی کو افطار رمضان میں کروا دے، یہ نفل نیکی ہے، فرض نہیں۔ اور
رات کو 1 کروڑ آدمی کو افطار کروا دیا، یا نیکی لٹکی رہے گی معلق، اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اپنا فرض روزانہ ادا کر لے، اپنا فرض روزانہ ادا کر لے۔ کوئی ہر سال 50 آدمی کو عمرہ اور حج کروائے، اس یہ نفل دوسروں کو حج کروانا نفل ہے، دوسروں کو عمرہ کروانا نفل نیکی ہے، کوئی نفل نیکی اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ اپنا فرض نہ ادا کر لے، فرض نہ ادا کر لے۔ اس نماز پنجگانہ چھوڑ کر کوئی رات بھر 1 کروڑ بار لا الہ الا اللہ پڑھے، کوئی رات بھر 100 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یہ ساری نیکیاں لٹکی ہوئی رہیں گی جب تک کہ وہ نماز فرض نہ ادا کر لے۔ قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم نے رات بھر 100 رکعت نماز نفل ادا کی یا نہیں کی، یہ سوال ہوگا کہ تم نے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، پنجگانہ نماز کا ہوگا۔ زنا کے بارے میں بعد میں، شراب کے بارے میں بعد میں، مال حرام کے بارے میں بعد میں، سود کے بارے میں بعد میں، سب سے پہلا سوال ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے اسی حدیث کا ترجمہ مسجدوں کے دروازے پہ لکھا رہتا ہے 100-200 سال پہلے سے، روز محشر کے جاگوداز بوت اولی پرشش نماز بوت، سب سے روز محشر جس دن جان پگھلے گی اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو اس کے معاملے میں کامیاب ہو گیا، حضور کہتے ہیں فقط افلح و انجح، وہ کامیاب و بامراد ہو گیا۔ جو نماز کے معاملے میں پکڑا گیا فقط خواب و خسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو حضور نے کہا، حضور تو یہ بولے جو نماز کے بارے میں گرفت میں آ گیا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اور آج لوگ کیا بولتے ہیں، نہ نماز جنت نہیں لے جائے گی، روزہ جنت نہیں لے جائے گا، عشق رسالت جنت لے جائے گا۔ وہ کون سا عشق رسالت ہے جو نماز نہ پڑھائے، وہ کون سا عشق رسالت ہے جو روزہ نہ رکھوائے، وہ کون سا عشق رسالت ہے جو زکات نہ دلوائے۔ عشق رسالت، عشق تو بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ محبت جب شدید ہو جائے تو وہ اسی کا نام عشق ہوتا ہے۔ عشق آسان چیز نہیں ہے، محبت محبت ہے، وہی محبت جو اور جڑ مضبوط کر لے، یعنی محبت ہے ماں باپ کو دن میں 1-2 بار دیکھ لیا، حج کا ثواب حاصل کر لیا، لیکن ایک پل بھی ان کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، اسی عشق کہتے ہیں۔ محبت محبت ہے، عشق وہی محبت جب شدید ہو جائے، یا عشق رسالت کا نعرہ ہے، اور تحریر چہرہ پورا صاف ہے، عشق رسالت کا نعرہ ہے، نماز ساری صاف ہے، عشق رسالت کا نعرہ ہے، زکات کے معاملے میں سستی ہے، عشق رسالت کا نعرہ ہے۔ عشق تو وہ عشق ہے، جناب طہتا انصاری ان کی بیوی مصطفیٰ سے جب عشق کرنے لگے اور عشق کرنے لگی تو سرکار دو جہاں کے ایک اداؤں سے ایسا پیار ہوا، حضور نے خطاب کیا تھا اس سرکار اللہ رب العزت، اس کی اللہ رب العزت بندے سے اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز خیرات نہ کیے جائے، نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ پسندیدہ چیز خیرات نہ کرو۔ جناب طہتا کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، سارے لوگ مدینہ کے جانتے ہیں کہ میرا وہ باغ مدینے کا سب سے زیادہ قیمتی ہماری پونجی ہے، میں چاروں طرف سے فصیل ہے، چاروں طرف سے کھجور کے درخت ہے، اور بیچ میں تالاب ہے، اس کے کنارے میرا اپنا گھر ہے، سبوں کو معلوم ہے وہی سب سے محبوب ترین میری پونجی ہے۔ حضور آپ کو میں گواہ بنا کر میں بولتا ہوں وہ باغ ابھی سے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جناب طہتا انصاری وہاں سے آئے، اب باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہیں، اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں، اے فلاں کی ماں، اپنے بچوں اور بچوں کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس سمیت باغ سے باہر نکل آؤ۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں یہ باغ اب ہمارا نہیں، اب یہ اللہ کی راہ میں باغ میں خیرات کر چکا ہو۔ بیوی نہ سر سے دیوار ٹکراتی ہے، عورت نہ صاحب چاہے کہ وہاں سے نہ جانے کی قسم کھا لیتی ہے، نہیں وہ نہ سر ٹکراتی ہے نہ شوہر پہ غصہ ہوتی ہے، بلکہ وہ کامیاب ترین بیوی کیا کہتی ہے، شاندار سودا آپ نے کیا ہے، دنیا کا مال دے کر آپ نے شاندار سودا کیا، یعنی جب بیوی ایسی لاجواب ہو تو شوہر کو اسلامی زندگی گزارنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی وہ سب سر لٹکا کے بیٹھ جاتی، وہ سینہ پیٹنے لگتی، وہ رونے گانے لگتی، میں کہاں جاؤں، میرے بچے کہاں جائیں، لیکن نہیں، جنت کا سودا ہوا ہے، یہ دنیا کا حقیر سا مال دے کے سرکار دو جہاں سے سچی محبت زبان سے خیرات کا محنت سنا ہے، مدینہ کا سب سے قیمتی باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ عورت ایسی لاجواب، سرکار دو جہاں کے سامنے باغ دیا گیا، اب ایک لفظ تک نہیں بلکہ خوشی کا مظاہرہ ہوا ہے، یعنی یہی وہ محبت جسے ہم
नाम दे सकते हैं, जो अपने बच्चों को पालते हुए भी सरकार दो जहां की मोहब्बत का जाम पिला पिलाकर हुजूर के नाम पे कुर्बान होने का जज्बा वो औरतें सिखाती थी। इश्क का मतलब यह है, शौहर शहीद हो गया कोई मलाल नहीं, 4 जवान बेटे शहीद हो गए कोई मलाल नहीं। ये बताओ मुस्तफा कैसे है, ये बताओ सरकार कैसे है। जब कहा गया हुजूर सही सालिम है और तुम्हारे 4 जवान बेटे शहीद हो गए और तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, सरकार के पास आके चेहरे मुबारक का दीदार करके मदीने की वो खातून कहती है, या रसूलल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, या रसूलल्लाह शौहर शहीद हो गया तो क्या हुआ, सारे बच्चे शहीद हो गए तो क्या हुआ, ये मुसीबतें सारी हेज है, आप सही सालिम है, मेरी सारी दुनिया सलामत है, सारी कायनात सलामत है। ये है इश्क, इसे कह सकते हैं इश्क, यानी मोहब्बत जब शिद्दत का जज्बा इख्तियार कर ले वो इश्क है। यहाँ मोहब्बत ही नहीं हुई है, इश्क कहाँ से होगा। अगर मोहब्बत पैदा होती तो आदमी कड़ाके की सर्दी में बर्फीली रातों में जाग कर आदमी नमाज अदा करता। अगर मोहब्बत होती सरकार के एक अदाओं पे नजर रखता, मोहब्बत होती तो सरकार दो जहां सलाम की एक अदाओं पे आदमी नजर रखता। हुजूर को कौन सा रंग पसंद है, हुजूर को कौन सा खाना पसंद है, हुजूर को कैसे जीना पसंद है, सरकार दो जहां को कौन सा अंदाज पसंद है, वो सारा अंदाज अब जिससे वो प्यार कर रहा है उसके सारे अंदाज को लेता। यहाँ एक आदमी को हीरो से प्यार होता है, उसकी तरह पैंट पहनना, उसकी तरह बाल रखना, उसकी तरह हाथ में धागा पहनना, उसकी तरह गले में लॉकेट पहनना, उसकी तरह स्टाइल बोलना, उसी की तरह स्टाइल में चलना, उसी स्टाइल में डायलॉग बोलना, अपने घर में बातें करना। ये झूठी मोहब्बत आदमी का हाथ बदल दे, झूठी मोहब्बत लिबास बदल दे, झूठी मोहब्बत जीने का अंदाज बदल दे, झूठी मोहब्बत हेयर स्टाइल बदल दे। जिस दिन सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई, एक कौम मुस्लिम मस्जिद की वीरानी का शिकवा न होगा, मदरसे की बर्बादी का शिकवा न होगा, बाल बच्चों की तबाही का शिकवा न होगा। जिस दिन सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई, घर में औरत भी सरकार से मोहब्बत करेगी, वो करीना नहीं फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करेगी। जिस दिन सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई, उस दिन जोकर से नहीं हसन करीमैन से सच्चा प्यार हो जाएगा। जिस दिन सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, सुबह से शाम तक फिल्मी तहजीब नहीं होगी, मुस्तफा की शरीयत पर अमल होगा। जिस दिन शरीयत पे अमल हो गया, चाहे पार्लियामेंट में तलाक का बिल वो पास हो जाए कि 3 तलाक देने वालों को जेल में डाला जाएगा, मैं कहता कोई जुलूस मत निकाल, कोई एहतजाज मत कर, उसका कानून बन जाने दे। तू अपने घर में शरीयत पर अमल शुरू कर दे। जब शरीयत पर अमल शुरू हो जाएगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि तुम्हारा बच्चा जेल में जाए। जब तलाक का गलत इस्तेमाल ही नहीं होगा तो कानून बना का बना रह जाएगा, न उस पर उसकी सद में एक बच्चा आएगा जो मुस्तफा की शरीयत का मजाक उड़ाएगा। उसे काफिर तो कदम कदम पे तड़पाएगा, उसे कातिल तो जबरदस्ती काफिर वो अपनी बात मनवाएगा। ये जो बर्मा की तबाही, ये जो हिंदुस्तान की बर्बादी, ये जो इराक की तबाही है, उसमें हमारी बदअमली का दखल, हमारी फिल्मी तहजीब को घर में दाखिल करने का दखल है। जिस दिन सच्ची तौबा हो गई और घर में शरीयत पर अमल शुरू हो गया, याद रखना अल्लाह की रहमतें आसमान से झूम के बरसेंगी। आज भी आवाज आ रही है, हम माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रहनुमाई मंजिल ही नहीं। मुस्तफा से मोहब्बत करके देख कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, दुनिया तेरी है, खिलाफत तेरे लिए है, बादशाहत तेरे लिए है। वरना ये मुशरिकीन हमें डेडलाइन देते हैं कि तुम्हें 2030 तक में मिटा दूंगा, 2040 तक मिटा दूंगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दूंगा। ये हमें डेडलाइन देता है, ये हमें हमारे जज्बात को ललकारता है। यहाँ तक एक मछेरा मछली मारने वाला वो भी जाग गया है कि हम इस्लाम मिटा के दम लेंगे। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में मुसलमानों के बच्चे का एडमिशन बंद हो रहा है, इसलिए कि मुसलमानों के बच्चे दहशतगर्द होंगे। उन दहशतगर्दों के बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं होगा। स्कूल जो इल्म की जगह है, उस इल्म की जगहों पे दहशतगर्दी की बात, हमारे बच्चों के दाखिला बंद हो रहा है। क्यों? उस बंद कमरे में हमारे खिलाफ प्लान बन रहा है। बच्चों के दिमाग में जहर भर दिया गया, किसानों के दिमाग में जहर भर दिया गया, नौजवान के दिमाग में जहर भर दिया गया। उसका बोलने वाला रहनुमा वो लाखों के मजमे में जहर उगलता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आग लगा देंगे, हम भगा देंगे। यानी ये सारी बातें दिन रात सुनने को मिलती है। मैं नहीं कहता कि हाथ में तलवार उठा ले और उनके घर में आग लगा दे, मैं नहीं कहता तलवार उठा ले उनकी गर्दन पे मार दे, नहीं, मैं ऐसी बात में मेरा मजहब ऐसा आदेश देता है। वो पोजीशन है जब जिहाद की पोजीशन
पोजीशन हो जाए, उस वक्त जान बचा के नहीं बल्कि जान दे के मजहब बचाना है। वो जब जंग की पोजीशन आ जाए तब नॉर्मल हालत में न गाली देना है, न कीचड़ फेंकना है, न तलवार उठाना है, बल्कि वो करना है जब इनके दिमाग में इस्लाम मिटाने का जुनून भर गया है तो मैं पैगाम देता हूँ मेरे बच्चों के दिमाग में भी इस्लाम बचाने का जुनून सवार हो जाए कि तुमने कसम खा लिया है इस्लाम मिटा दूंगा, मैंने भी कसम खा लिया है मैं इस्लाम बचाऊंगा। मेरी माँ बहन के दिमाग में इस्लाम बचाने का जुनून जब पैदा हो जाएगा तो वो फिर क्या करेगी, वो जो इनके निकाब का मजाक उड़ाती है, जो इनके हिजाब का मजाक उड़ाती है, वो उनके जीन्स को में आग लगा देगी, वो उनके टी शर्ट को पाँव के नीचे रौंद देगी, वो उनकी फिल्मी तहजीब में आग लगा देगी और फातिमा ज़हरा की चादर अपने बदन पे डाल लेगी। जिस दिन ये जुनून चढ़ गया इस्लाम के बचाने का तो इस्लाम नहीं बचता है तलवार लेके उठने से, इस्लाम बचता है मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने से। जिस दिन हमारी माँ बहन बेटियों के दिमाग में इस्लाम बचाने का जुनून चढ़ गया तो फिल्म का जीन्स भी मिट्टी के नीचे दफन होगा, उसका टी शर्ट भी आग लगा दिया जाएगा। हमारी बहन के सरों से जो दुपट्टे निकल गए जिसने बलात्कार और इगवा और रेप और कत्ल को जन्म दिया है वो सारे जराइम के दरवाजे इसीलिए खुले हैं, उनके सर से दुपट्टा हटा है, उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। जहाँ 18 साल का जवान 18 साल की लड़की एक कोचिंग सेंटर में बैठ के पढ़े, प्रोफेसर आए तो पढ़ने लगे, प्रोफेसर जाए तो फिर एफएस और लव की बातें होने लगे। जहाँ दोनों जवान है ये बता दें उस आग को भड़कने और दोनों की शहवत की आग में जलने से कौन बचा पाएगा। इस आज रेलवे के डब्बे में औरतों का डब्बा अलग क्यों होता है? जब मर्द औरत दोनों का हुकूक समान है तो फिर एक ही डब्बे में दोनों जाए, लेकिन जब डब्बा अलग है इसका मतलब है कि एक डब्बे में सफर होगा तो खतरा हो सकता है। इसलिए तो इस्लाम ने कानून पर्दा दिया है, कानून पर्दा देकर औरतों को जलील नहीं किया है बल्कि ज़िनाकारी का दरवाजा बंद करने के लिए कानून पर्दा नाफिज किया है। औरतों के दिमाग में जुनून चढ़ जाए तो शरीयत पे अमल करने का तो फिल्मी तहजीब का जनाजा निकल जाएगा। जब नौजवानों के दिमाग में इस्लाम बचाने का जुनून चढ़ जाए नमाज़े पंचगाना अदा करने के लिए मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, उनका बाल हेयर स्टाइल नहीं बदलेगा, उनका हेयर स्टाइल मुस्तफा की सुन्नत लिए हुए जुल्फ लिए हुए होगा, उनका कपड़ा पहनने का अंदाज सरकार दो जहां की सुन्नतों के मुताबिक होगा, वो हदीस पाक पढ़ेगा, नावल और ड्रामा नहीं पढ़ेगा। जब जवान बदल जाए, औरतें बदल जाए, मेरा किसान बदल जाए, मेरा कल्टीवेटर बदल जाए, मेरे बड़े बेबड़े सब बदल जाए तो मैं वसूख के साथ कहता हूँ जब मेरा घर, मेरा दर, मेरी मस्जिद, मेरा मदरसा, मेरा कल्चर, मेरे बच्चे, मेरे जवान, मेरी बेटियां, मेरा अधेर यानी मेरा समाज जिस दिन बदला वह डेडलाइन जो 2030 का है वह डेडलाइन दोबारा वो दे दे, उसका डेडलाइन खत्म होता रहेगा, इस्लाम मुक्त भारत न होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यही सपना आज से 100 साल पहले मुशरिकीन के आबा अजदाद ने भी देखा था। उस जमाने में 8 करोड़ मुस्तफा का गुलाम आज 30 करोड़ में बदल गया। आज अगर शरीयत पे अमल शुरू हो जाए और तमाम फिल्मी तहजीब को पांव के नीचे रौंद दिया जाए, इस्लाम बचाने का जुनून चढ़ जाए, वह जुनून कि तुम हमारी अज़ान के खिलाफ बोलता है हम तुम्हारे गाने को नहीं सुनेंगे, तुम हमारे कल्चर के खिलाफ बोलता है हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम हमारे लिबास के मजाक उड़ाता है हम तुम्हारे लिबास को घर में पटकने ना देंगे, तुम हमारी अज़ान के खिलाफ बोलता है मैं तेरा गाना नहीं सुनूंगा, तुम हमारी शरीयत के खिलाफ बोलता है मैं तेरी फिल्म नहीं देखूंगा। यानी ये जुनून जब चढ़ जाए तेरा गाना नहीं सुनूंगा, तू मेरी अज़ान के खिलाफ बोलता है मैं तेरा डायलॉग नहीं बोलूंगा, तू मेरी शरीयत के खिलाफ बोलता है। यह जुनून जिस दिन चढ़ गया तो आने वाले 2030 के बाद वो मंजर नजर आएगा जब जमीन से आसमान से खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा। यह 30 करोड़ मुक्त चाहो तो भागेगा क्या, अनकरीब ये 30-60 करोड़ की तादाद में तब्दील हो जाएगा। फिर इस्लाम मुक्त भारत नहीं, हकीकत में ख्वाजा शासित हिंदुस्तान का चेहरा आने वाला हिंदुस्तान की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। यही पैगाम औलिया सालिहीन ने दिया, यही पैगाम हमारे बुजुर्गों ने दिया, यही पैगाम कुरान करीम का है, यही पैगाम दिन रात मदरसे की चटाई पे बच्चों को दिया जाता है। काश वही दर्द लेके बच्चे यहाँ से निकल जाए। इंसान बनाने की फैक्ट्री का नाम है ये मदरसा। यह फैक्ट्री जब तक मजबूत थी उस वक्त तक समाज में एक ढूंढो तो 100 में 99 इंसान मिलते थे, और जिस दिन से फैक्ट्री कमजोर हो गई यहाँ गरीबों मिस्किनों का बच्चा पढ़ेगा। जब बादशाहों का बच्चा पढ़ता था, जब औरंगजेब पढ़ते थे,
थे, जब शेरशाह सूरी पढ़ते थे, जब इनके वालिद पढ़ते थे, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ते थे, जब हारून रशीद का बेटा मामून पढ़ता था, उस वक्त ये मदरसा इतना मजबूत था। यहाँ से निकलने वाले इंसान समाज सड़कों पे जब चलते थे, लगता था कि ये समाज इंसानों का समाज है। लेकिन जब से हमने से गरीबों मिस्किनों के बच्चे की पढ़ने की जगह छोड़ दी, कह दिया अनाथालय है, यतीम पढ़ेगा, या मिस्किन खाना है, मिस्किन पढ़ेंगे, यतीम खाना है, यतीम पढ़ेगा, मालदारों के बच्चे वहां जाएंगे। क्रिश्चियनों के स्कूल में जो एक किराए के मकान में स्कूल खोला, 2 साल में 100 कमरे का निजी मकान बना के शानदार बिजनेस का एक अड्डा बना लिया। हमारे बच्चे मदरसे जो 100 साल पहले थे वो ऐसे ही उजड़ गए, मदरसे में ताले लग गए। चूंकि जब मुसलमान ही इसकी कदर नहीं करेगा तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें। इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। आज रोता है हिंदुस्तान के डॉक्टर अच्छा नहीं, इंजीनियर अच्छा नहीं, इंसान बच्चे नहीं। कहां से मिलेगा इंसान? इंसान बनाने की फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कह के डैमेज किया। इंसान बनाने की फैक्ट्री को मुसलमानों ने वो साहब अपाही जो माजूर और यतीम बनने का उसे अड्डा करार दिया। तो कहां से इंसान मिलेंगे? लुच्चों की तादाद में इजाफा होगा, लफंगों की तादाद में इजाफा होगा, डकैतों की तादाद में इजाफा होगा। अगर इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है शरीफों की तादाद बढ़े, मुसलमान चाहते हैं इंसानों की तादाद बढ़े, एक वाहिद रास्ता है, इंसान बनाने की फैक्ट्री को मजबूत करना होगा। जब जब ये फैक्ट्री मजबूत होती जाएगी, जानवरों से नहीं इंसानों से सामान भरता चला जाएगा। एक आदमी तलाश करेगा एक इंसान, कदम कदम पे इंसान मिलता जाएगा। यह दरसगाह रसूल है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब की तालीम जहां हो, उससे बेहतर दरसगाह कोई नहीं। जहां सबसे बेहतर इंसान मुस्तफा जान रहमत की हदीस पढ़ाई जाए, उससे बेहतर कोई दरसगाह नहीं है। यही वजह है कि मुस्तफा का मेहमान जब तक पढ़ता है, उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, और ये पढ़ने के बाद जब कुरान पढ़ाता है, इस कदर मकाम बुलंद होता है। यस्तगफिरु लहू मा फी समावाति वल अर्द, आसमान जमीन के दरमियान की सारी चीजें इनके लिए बख्शिश की दुआ करने लगती है। यहाँ तक के दरख्तों का पत्ता आलिम के लिए दुआ करे, यहाँ तक के सुराखों की चूटियां आलिम के लिए दुआ करे, यहाँ तक के पानी में मछलियां इनके लिए दुआ करे। इसलिए इन दरसगाहों के फारगीन का कद सारी दरसगाहों के फारगीन के कद से ऊंचा हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इंसान बनाने की फैक्ट्री जिंदा रहे, इंसान बनाने की फैक्ट्री सलामत रहे, तो उस फैक्ट्री में अपने बच्चों को भी भेजना पड़ेगा, और अपने दूसरे भाइयों के बच्चों के लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। जब यह दरसगाह सबसे कीमती दरसगाह हो गई, तो फिर इस दरसगाह की बिल्डिंग, इस दरसगाह की बिल्डिंग, इस दरसगाह के बच्चों के खाने पीने का इंतजाम दूसरी दरसगाहों के मुकाबले में बेहतर होना चाहिए। इसलिए बेहतर होना चाहिए ताकि दुनियादारों के दिमाग में इस दरसगाहों की इज्जत और अहमियत बैठ जाए, यहाँ के बच्चों को इज्जत की निगाह से देखा जाए, ताकि दूसरों को इंजीनियर बनाने की फिक्र बाद में, आलिम और हाफिज दोनों जहान की नेमतों को समेटने की फिक्र पहले पैदा हो जाए। जब मदरसे के बच्चे यतीम और अनाथालय होंगे, कोई अच्छा बाप कोई मदरसे में नहीं पढ़ाएगा। इस यतीम की निगाह से नहीं, मुस्तफा के मेहमान वाली नजर से आप देखा करें। मदरसे को यतीम खाना नहीं, मुस्तफा का मेहमान खाना करार दे। जब तक ये मेहमान खाना था, बादशाहों के बच्चे पढ़ते थे, और जिस दिन से यतीम खाना हो गया, गरीबों के बच्चे भी उस वक्त तक पढ़ते हैं जब तक उनका बाप मजदूर रहता है। जिस दिन बदन हाथ मोटा ताजा हो गया, चंद पैसे बढ़ गए, चाहे वो मदरसे में जिंदगी भर क्यों न पढ़ाओ, वो भी अपने बच्चों को उसी दरसगाह का दरवाजा दिखलाता है जिस दरसगाहों को बिजनेस का अड्डा बना दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि छोटा सा मकतब जिसे मदरसा शहीद या भोला सा बोला जाता है, जहाँ के 2 बच्चों की दस्तार होने वाली है, जिस दिन की वजह से आज ये महफिल जन्नती रूहानी सजी है, जिसमें आप 1.5-2 घंटे से ये रूहानी खिताब आप सुन रहे हैं, जहाँ कुरान हदीस का पैगाम आप तक पहुंच रहा है। ये मदरसा न होता, ये जलसा न होता, ये मदरसा न होता तो दर्जनों आलिम न आते, ये मदरसा न होता तो 2 बच्चे हाफिज कुरान न होते, ये मदरसा न होता तो हमारे बुजुर्गों का आना जाना न होता। ये सारी मेहनतें जिस एक बंदे खुदा की वजह से है। यह सुल्तान नाम का एक शख्स है, क्या नाम है? हाफिज सुल्तान साहब की मेहनतों ने इस छोटी सी दरगाह को उन्होंने मदरसे की शक्ल इख्तियार कर दी है, शक्ल दे दी है। शानदार बिल्डिंग माशाअल्लाह। एक आदमी जब मेहनतें करे तो इस कदर मदरसा बने जहां 50-100 आदमी का खुसूसी ताउन शामिल हो जाए, क्यों नहीं वो मदरसा जामिया की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये मदरसा आए दिन दारुल उलूम की शक्ल में तब्दील होगा? क्या मैं उम्मीद करूं कि आपके ताउन से ये मदरसा जामिया बनता नजर आएगा? जरा हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाए हमारा ताउन इसके साथ रहेगा। हाथ उठाओ ना यार, क्यों अब सुन पड़ गए, फिर बनाए
जमाल अख्तर साहब को लतीफ़ा छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा बदन हरकत में आएगा। लतीफ़ा सुनने वालों के सामने यहाँ कुरानी खुराक दी जा रही है। अब जाहिर सी बात है सन्नाटा तो छाएगा ही। हाथ उठा के दिन दिलाओ कि इंशाअल्लाह मदरसे का ताउन मैं करूंगा, इंशाअल्लाह ताउन मैं करूंगा। मैं कैसे यकीन करूं कि ताउन होगा? मैं उस यकीन को मैं उस सूरत में देखना चाहता हूं। यहाँ अभी भी 1000 के करीब लोग मौजूद हैं। अगर यहाँ मैं एक दीवाना सरकार गौसे आजम का इस मुकद्दस महीने में सरकार गौसम का एक दीवाना मेरे सामने सिर्फ 1100 रुपए की एक मामूली सी रकम लेके आ जाए, तब मैं समझूंगा कि हाँ जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में भी साल भर आप इस इदारे का ताउन करते रहेंगे। एक दीवाना गौसे आजम का सिर्फ 1100 रुपए वाला जो आ जाए इस मदरसा शहीद या भोला शाह के ताउन के लिए, वो आ जाए सिर्फ 1100 रुपए लेके एक दीवाना सरकार गौसे आजम का, कि हम इस दर से ज़ियाउद्दीन खां बाराडी नारा लगाए नकीब साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा शहीदिया भोला शाह। इन्होंने 1100 रुपए देकर सरकार गौसे आजम के गुलामों की फहरिस्त में नाम लिखवाया और इस दरसगाह रसूल का इन्होंने ताबुत किया है। अब एक दूसरा दीवाना गौसे आजम का, वो भी इस मुकद्दस घड़ी में रात का आखिरी लम्हा है, यहाँ इस फकीर इस मुसाफिर की दुआ कबूल होगी। मैं अपने लिए नहीं बल्कि इस दरसगाह रसूल के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि अगर मैं देख लूँ आपके जज्बात को, साल भर आप देते रहे, ज़कात की रकम दें, आप सदक़े फित्र दें, अगर आप काश्तकार हैं तो आप उश्र निकाल के दें, वो सब देते रहे, लेकिन अभी मैं देखना आपके जज्बात को मैं देख लूं कि शराब एक खाता पीता और शानदार तरक्की याफ्ता मालदार जिला है सूबे बिहार का। मैं जरा देखना चाहता हूं कि कोई दूसरा गौसे आजम का गुलाम, गौसे आजम कहते हैं मेरा गुलाम अगर उसका सत्र खोले पूरा मैं, तो मैं अब्दुल कादिर उसके सत्र को ढांप देता हूं। गौसे आजम कहते हैं जिस तरह ये आसमान जमीन को ढके हुआ है, उसी तरह मेरा हाथ मेरे सारे मुरीदों के सर पे है। सरकार गौसे आजम की रूह खुश हुई। आप यकीन जाने ये 1100 रुपए 11 लाख रुपए लेके वापस आ जाएंगे। एक दूसरा दीवाना गौसे आजम का, अभी 3 दिन पहले मैंने आवाज दी थी, कहा वहां मैसूर की सरजमीन में, वहां 11,000 का मैंने ऐलान किया था। चूंकि मैं बिहारी हूं और बिहार ही में मैं जलसा पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं 11,000 का नारा नहीं दिया। मुझको अपनी कमजोरी का एहसास है, मैं कमजोर हूं और कमजोर स्टेट में रह रहा हूं और कमजोर लोगों के दरमियान में ऐलान कर रहा हूं, ये मुझे अपनी कमजोरी का एहसास है। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने ऐलान किया था मैसूर में, 11,000 के इतने लोग सामने आ गए। मुझे आज आपकी महफिल में उस कर्नाटक के शहर मैसूर की तारीफ करनी पड़ रही है। बस एक दूसरा दीवाना गौसे आजम का जो 1100 रुपए लेते, मुझसे कहा गया था कि हजरत सामने वाला एक रूम हाल है जिसकी छत की ढलाई होने वाली है, छत की ढलाई में 10 कुंटल छड़ दरकार है, छत की ढलाई में उसमें 100 बोरी 1100 रुपए मोहम्मद फिरोज भाई ने 1100 रुपए से इस जलसे की खिदमत की, इस मदरसे की माशाल्लाह हमारे भाई ने ऐलान करवाया था। उन्होंने 1100 रुपए से मदरसे का ताउन किया। हमारे हाफिज सुल्तान साहब ने कहा था कि हजरत इस हाल की ढलाई करनी है और उसमें 10 कुंटल छड़, 100 बैग सीमेंट और फिर उसमें 4 टेलर बालू और 3 टेलर मिट्टी दरकार है, मजदूरी अलग से। अगर कोई दीवाना हो सरकार गौसे आजम का, औलिया सालिहीन का अकीदतमंद जो 1 कुंटल छड़ लेके आज लिखवा दे ताकि 10 आदमी निकल जाए और 1 कुंटल छड़ लेके, तो छड़ का मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। और 1 कुंटल छड़ देना, जब तक वो छड़, जब तक वो लोहा इस मदरसे में लगा रहेगा, यकीन जाने उसके साए में जब तक मुस्तफा के मेहमान पढ़ते लिखते रहेंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। 1-1 कुंटल छड़ सिर्फ 10 आदमी अगर वो लेके लिखवा दें और जब उसमें हाथ लगे, जब सेंटिंग का काम होने लगे, उस वक्त ला के आप दे दें, समझ लें एक बहुत बड़ा काम होगा। यूनिवर्सिटी में 5 करोड़ देने का वो अजर न मिलेगा जो अजर इस छोटे से दारुल उलूम में 1101 कुंटल छड़ देने का मिल जाएगा। चूंकि दूसरी दरसगाह का रिश्ता किसी दूसरे दुनियादारों से मिलता है, लेकिन इस दरसगाह का रिश्ता मुस्तफा जान रहमत की तालीम दरसगाहों से मिलता है। यहाँ के पढ़ाने वाले को नाइब रसूल बोला जाता है और यहाँ के पढ़ने वाले को मेहमान रसूल बोला जाता है। यहाँ के पढ़ने वाले को मेहमान रसूल बोला जाता है और यहाँ के पढ़ाने
पढ़ाने वाले को नाइब रसूल बोला जाता है। कोई दूसरा दीवाना गौसे आजम का जो 1100 रुपए लेके आ जाए, सरकार गौसे आजम कहते हैं कि मैं उसी तरह दुनिया को देख रहा हूँ जिस तरह हथेली के मैदानों को देखता हूँ। गौसे आजम तसर्रुफात करने वाले उस वलियों के सरदार का नाम है जो अपनी कब्र से कायनात का मुशाहिदा फरमाते हैं। गौसे आजम का एक दीवाना और मिल जाए जो 1100 रुपए लेकर इस छोटे से मदरसे का ताबुन करे। हाफिज सुल्तान तनहा चले थे, उन्होंने सोचा न था कि इस मुसीबत की घड़ी में इस दरगाह के चारों तरफ मदरसे की इमारत बनेगी, मगर आपके ताबुन से, इनकी मेहनत से एक शानदार मदरसा बन गया। इस मदरसे की जो बाकी मानदा इमारतें हैं वो भी बन जाएंगी अगर आप चाह लें। 1100 रुपए गौसे आजम का एक दीवाना लेके आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गौसे आजम कोई दीवाना जरूर सामने आएगा। गौसे आजम का दीवाना कोई आ जाए। 1100 रुपए। क्या नाम है आपका? शाहजहां महला, ये लुकमान भाई ने 1100 रुपए। मैंने सोचा ये नौजवान इस कदर कमजोर आदमी 1100 रुपए से ताबुन करेगा। वहाँ माल नहीं देखा जाता, वो तो हौसला देखा जाता है। हौसला रहे तो 1100 रुपए, नहीं तो लिखवा दे आदमी कि मैं कल लाके दे दूंगा। अगर हौसला न रहे, हौसला पस्त रहे, दिल छोटा रहे कि 1100 दूंगा तो 1100 में 10 दिन की सब्जी हो जाएगी, फिर वो जिंदगी भर बखालत के रोगी में मरता रह जाएगा। असल में हौसला है, हौसला है, दिल चाहिए। उसे फरमाते हैं लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज, ज्यादा कसरत माल से मालदारी नहीं होती है, वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। सरकार फरमाते हैं असल में मालदारी तो दिल की मालदारी है। दिल बड़ा रहे तो बड़ा से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। मैं और तीसरा चौथा दीवाना चाहता हूँ सरकार गौसे आजम का जो 1100 रुपए लेके इस इदारे का ताबुन कर दे। नाते पाक हो गई है, शानदार निकाबत भी हो गई है, और साहब वो 2-4-10 घंटे में जो तकरीरें होती है वो सारी तकरीरें नॉन स्टॉप तरीके से 2 घंटे में हो गई है। तकरीर भी हो गई, नात भी हो गई, निकाबत भी हो गई। अब मदरसे का कुछ काम होना चाहिए। अगर मदरसे का काम हो गया तो समझ लें कि ये जलसा कराने का जो एक के मकसदों में जो एक बड़ा मकसद होता है वो मकसद पूरा हो गया। बस एक माली इबादत आपने 2-4 घंटे से टाइम दिया, समझ लें कि 2-4 घंटे आपने एक चलती फिरती रूहानी खानकाह में आपने गुजार दिया, जहाँ आपकी जबान गुनाहों से सिर्फ रही, जहाँ आपकी निगाह गुनाहों से महफूज रही, जहाँ सारे आज़ा आपके गुनाहों से महफूज रहे। इस गुनाहों के माहौल में 2-4 घंटे नेकियों से के माहौल में गुजारना बड़ा मुश्किल है। ये जलसा है जो आपको पाकीज़ा और पवित्र माहौल अता किया है। एक तरफ वो सारी नेकियां मिलती रही, फरिश्तों के साथ बैठने का मौका मिला, और माली इबादत कुरान करीम के जिस चैप्टर को आप खोलें वहाँ तुनफिकून फी सबीलिल्लाह, युनफिकून फी सबीलिल्लाह, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, यानी इन्फाक कहते हैं खर्च करने को। कोई चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिस चैप्टर में माल खर्च करने की तरगीब नहीं दिलाई गई हो। माल, चूंकि माल की मोहब्बत आदमी के सीने को तंग कर देती है, माल की मोहब्बत आदमी को अंदर से दिली मरीज बना देती है। इसीलिए ज़कात, सदक़े फित्र और गाहे बगाहे नफल खैरात करते रहने से वो दिल का रोग, दिल का मर्ज दूर होता रहता है। इसलिए कसरत से कुरान करीम ने खर्च करने का पैगाम दिया है। जहाँ कुरान पाक की तालीम होती हो, 11,000 रुपए का मुतालबा अपनी जगह रहेगा। चूंकि वक्त कम है, अब एक आम ऐलान में कर रहा हूँ, जिसके पास जो कुछ हो सारे लोग मेरे सामने आ जाए और इस मुसाफिर से मुलाकात करें और इससे मुसाफा करें कि 500 रुपए लेकर, 100 रुपए लेकर, 50 रुपए लेकर, यानी मामूली रकम 50 की जिसके पास मौजूद है वो आ जाए, इस मुसाफिर से मुलाकात करें। एक आंधी तूफान बन के उड़ जाओ अपनी जगह से, सारे लोग उड़ जाए, जिसके पास जो रकम है वो इस मदरसा भोला शाह, मदरसा शहीद या भोला शाह के ताउन के लिए उड़ जाए। जितने लोग यहाँ है, जैसे आपने जमाल अख्तर साहब को दिया, जैसे आपने साहब डॉक्टर साहब को आपने दिया, अख्तर फराज हबीबी को आपने दिया, इस मदरसे के लिए आप दें। जो दाईमी राहत और नेमत लेके जो आपके पास वापस आएगा, यानी आप 100 रुपए 500 रुपए देते रहे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी 500 मुश्किलात आसान फरमा दे। जिसने 100 रुपए दिया, अल्लाह उसकी 100 मुश्किलात को आसान फरमा दे। सारे लोग क्या सोच रहे हो भाई, 50 रुपए 100 रुपए 10 रुपए, जिसके पास जो है सब लेके उड़ जाओ। कम से कम मैं तो के सारे लोग उड़ गए, सबों ने आंधी तूफान बन के ताउन किया। जिसके पास जो उठे, शर्माए मत, लजाए मत, जिसके पास जो है वो सब लाके दे दे। खतरे खतरे से मिलके दरिया बनता है। पंजतने पाक के नाम से मोहम्मद
उठने में दिक्कत हो रही तो एक आदमी घूम जाए ना हजरत मोहम्मद अबुल कलाम इस्माही ने 500 रुपए से इदारे का तामुल किया। अल्लाह ताला की 500 मुश्किलात आसान फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जो खर्च नहीं करता है, अल्लाह ताला मामूली सी बीमारी देकर हजारों उससे निकलवा देता है। अल्लाह ताला पैसों से बरकतें उठा लेता है। इसलिए जो हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है, अल्लाह ताला उस पैसों को सेफ्टी और तहफ्फुज अता फरमा देता है, फजूल राहों में खर्च करने से बचा देता है। हमारे एक भाई ने आलिम दीन ने 100 रुपए से इस इदारे का ताउन किया। उठिए सारे लोग उठ जाइए अपनी जगहों से, अपने सारे लोग उठे, 50 रुपए लेकर, 10 रुपए लेकर, 5 रुपए लेकर, नहीं है पैसा, सिर्फ आके मुझसे मुसाफा कर लो और इस मुसाफिर से मुसाफा करो। जो मुसाफा मुझसे करेगा मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात आसान फरमा दे, अल्लाह ताला उनके घर में बरकतें अता फरमा दे, उनके बाल बच्चों को बीमारी से बचा दे। 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 50, उठो, इंतजार मत करो, शर्माओ मत, उठो अपनी जगह से। जर्रा जर्रा से मिलकर दरिया हो जाता है। 100 बोरी सीमेंट है, एक बैग सीमेंट की कीमत 400 रुपए है। अगर 4 आदमी ने 100 रुपए दिया तो 4 आदमी मिलकर एक बैग सीमेंट की कीमत हो जाएगी। अगर 400 आदमी ने 100 रुपए दिए, समझ लें कि 100 बोरी सीमेंट का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए 100 रुपए को आप कम मत समझ लें, वो 11,000 देने वाले 3 खुश नसीब ने दे दिया, बाकी 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए जिनके पास जो है वो सब सामने आके लाके दो। जिसके पास जो है सामने आओ, लाओ, उठो, शर्माओ मत, उठो, बदन को हरकत दो, लाओ सामने हाथ मिलाओ, सामने आ जाओ, सामने आके हाथ मिलाओ। अल्लाह ताला आपकी 50 रुपए देने के सदके में 50 हाजतों को पूरी फरमा दे। अल्लाह ताला 50 मुश्किलात आसान फरमा दे। हमारे जो भाई ने 50 रुपए दिए, अल्लाह उनकी 50 मुश्किलें आसान फरमा दे। हमारे जिन भाई ने 50 रुपए दिए, अल्लाह उनकी 50 जायज और नेक हाजतों को पूरी फरमा दे। उठो, सारे लोग उठ जाओ, 100 रुपए लेके आ जाओ, 50 रुपए लेके आ जाओ। मदरसा शहीद या भोला शाह औलिया और सालिहीन के फैजान से मालामाल होने के लिए 50 रुपए कोई मना नहीं रखता, मगर एक छत की तामीर हो जाएगी। अगला जलसा जब होगा, उस जलसे में आप देखेंगे हाफिज सुल्तान साहब ने उस छत को भी वो ढाल चुके होंगे। आपके पैसे से तकवीयत मिल जाएगी, आपके पैसे से थोड़ी उनको हिम्मत मिल जाएगी, आपके पैसे से उन्हें काम करने का और हौसला मिल जाएगा। हमारे एक भाई ने बहुत दूर से चल के इन्होंने जो है 100 रुपए दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी 100 जायज और नेक हाजतों को पूरी फरमा दे। हमारे इस नौजवान ने अपनी तरफ से 20 रुपए दिया है, अल्लाह इनकी 20 मुश्किलात को आसान फरमा दे। हमारे दूसरे भाई ने 50-100 रुपए से इस इदारे का ताउन किया है, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमा दे। वो पर सीमेंट, बालू, छड़, वो जिसको अल्लाह शौक दे वो देते रहिएगा, मगर अभी 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जिनके पास जो हो देते रहे। हाफिज सुल्तान साहब आपके पास पहुंचेंगे सीमेंट के लिए, छड़ के लिए, बस मतलब एक हफ्ता उन्होंने मेहनत की, आपके पास चले गए, आपने ताउन का हाथ दराज किया, और फिर 2 महीने के अंदर ही उस हाल के छत की ढलाई हो जाएगी। अब आप लोग चंदा देते रहे, जब तक आप यहाँ बैठे रहे अपना ताउन, जब आपके दिल में अंदर से शौक पैदा होता रहे और हिम्मत होती रहे, और जब तक आपको लगे कि आपको देना चाहिए, उस वक्त तक आप, जब तक आप जलसे में रहे, आप देते रहे। मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया, मैंने आपके जमीन को झंझोड़ने की हमारी कोशिश की। अगर जलसे में 2 घंटे की तकरीर के बाद 5 आदमी भी अंदर से हिल गया, अंदर से शरीयत पर अमल करने का जज्बा पैदा हुआ, वो धीरे धीरे कोशिश करने लगा, तो 50 करोड़ का मकान बना देना वो उतना बड़ा काम नहीं है जितना कि 5 आदमी को अंदर से परफेक्ट मोमिन बना देना, ये कमाल की बात है। मकानात की तामीर कोई बहुत बड़ी तामीर नहीं, मानवता की तामीर, इंसानियत की तामीर, ये सबसे बड़ी तामीर है। आक़ाए दो जहान इस्लाम ने कहा था, अली अगर तुम्हारी वजह से एक आदमी भी राह रास्ते पे आ गया तो यह काम तुम्हारे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। यानी तुम जहां जा रहे हो खैबर की तरफ, पहले तलवार मत चलाना, पहले लोगों के सामने इस्लाम पेश करना। अगर एक आदमी भी राह रास्ते पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से काम बेहतर है। 2 लाख रुपए जलसे में खर्च हो, अगर 2 आदमी भी अंदर से परफेक्ट हो जाए, उनके दिल पे चोट लगे, उनकी आंखों से आंसू के कतरे बह जाएं, वो अंदर से गुनाहों से तौबा करके सच्चा मुसलमान बनने की वो कोशिश शुरू कर दे, ये समझ लें 2 लाख का 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का वो काम हुआ। चूंकि मकानात की तामीर से समाज खूबसूरत नहीं होता, इंसानों की तामीर से समाज खूबसूरत होता है, इंसानों की तामीर से समाज खूबसूरत होता है, इंसानों की तामीर और तश्कील से समाज अच्छाइयों की जन्नत बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी और दुनिया के सारे मुसलमानों को नेक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को जहालत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अरे आप माइक से बोलते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को घरों में शरीयत नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन।
اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلمی تہذیب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بال بچوں کو علم ادب اور اخلاق سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں کے بچوں کو، یہاں کے مدرسین سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام اہل سنت و جماعت کے عوام اور علماء سبوں کو دونوں جہان کی ہریالی عطا فرمائے۔ بولو جناب، بولو آمین، بولو، ہم 2 گھنٹہ تقریر کے تھکے نہیں، اور تم ایک بار آمین کرنے میں تھک کیوں جاتے ہو یار؟ ذرا زور سے بولو استغفر اللہ، زور سے بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور زور سے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔